तुम एक और कदम आगे बढ़ाते चले आना, आने वाली ख्वाहिशों को खिड़कियों से नहीं दरवाज़ों से लेकर आना। नमस्कार और आप देख रहे हैं क्लैप ट्रैप। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में ऐसा ही एक ख्वाहिशों का घर आपको दिखाते हैं। Hello Tarun. Hi. Hi, Welcome. Sanjeev. Hi, welcome to Claptrap. Thank you so much. And all the viewers, those who are watching this video, they should be prepared to see something extremely different, totally different from the rest of our previous videos, because you as a designer has come with a lot of colors and a lot of hues and a lot of tint and a lot of energy. Right. Okay, but we have a tendency to ask basic questions. They should get acquainted with you first to start with. Right. So let's start with the basic question. What is your name? What is the name of the company? Where are you based out? And then I'll immediately jump to the creative part of it. Definitely. Because that's the most important part. Definitely. Right? Yeah, please tell us. Yeah, my name is Tarun Mehta and my company name is Tarun Mehta Interior Designer. We are basically based out of Noida. Okay. And we are handling, as of now, the Noida, Delhi, NCR, Gurgaon, Ghaziabad. So we are handling basically a residential project, most of them. So today we are going to show you one of our best project. Okay. So which is we have already executed and the client has already shifted. We'll go through the feedback of the client as well. All right. At the end of the video, we will talk about it. Definitely. Today, I think this is the shortest possible introduction. And we'll also jump to the creative part now. But this is for the viewers, those who are watching this video, but they want to learn a lot of things. This video will help actually be the torchbearer or the flagship video for all the viewers. Definitely. Because all of us unanimously, all the clients, as we were talking in the lift, that we all make certain mistakes when they choose a designer. Right. So we'll talk about that as well. Right. So we'll start with the basic tour, then we'll talk about that as well. Definitely. Okay. Entrance से start करेंगे तरुण जी। हाँ जी। कहते हैं कि हम हर वीडियो में कहते हैं इस वाली बात को कि आपके घर का पोस्टर होता है आपका मेन एंट्रेंस, तो ये जो डोर है ये बहुत डिफरेंट है, राइट? बिल्कुल। तो दो तीन चीज़ें हाईलाइट है यहाँ पे, डोर और नेम प्लेट। ये हमें बताएं कि ये कैसे इन्वेंट हुआ। जैसे आपने बोला कि मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा, फर्स्ट इम्प्रेशन, हाँ, योर लास्ट इम्प्रेशन, राइट। यहीं से आपको जज हो जाएगा कि कौन किस लेवल पे काम कर रहा है। एग्जैक्टली। तो ये हमने क्या किया है इसमें बेसिकली? इसमें हम लोगों ने जो डिफरेंट जो कुछ 2-3 चेंजेस किए हैं। एक तो हम लोगों ने डोर का साइज चेंज किया। अर्लियर इट वाज 7x3, हम लोगों ने इसको 8x4 में कन्वर्ट किया। राइट, जिससे कि उसकी एंट्री ग्रैंड हो गई हर की। और दरवाजे में ड्यूल कॉन्सेप्ट है, बाहर का लुक अलग है और अंदर का लुक अलग है, जो अभी हम देखेंगे। हाँ, उसके बाद हम लोगों ने एक मार्बल लुक के अंदर पैनलिंग की है, जो कि रफ एंड टफ यूज़ है, नॉट हाई मेंटेनेंस। उसके बाद और इसको सिंपली और ब्यूटीफाई करने के लिए हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर प्लेट्स यूज़ की है। एक नेम प्लेट यूज़ की है बेसिकली। तो नेम प्लेट्स के अंदर जिसमें क्लाइंट्स का सरनेम है और फ्लैट का नंबर है। ठीक है। This is the basically foyer area, come waiting lounge as well. Okay. Her client will come and sit and they will wait for the turn and then we'll go for that. They also need a very good vibes in this. So we make it very beautiful here. So whatever we can done.
अच्छा, ये हमने यहाँ पे क्या लेमिनेट्स यूज किए? या दिस इज द लैमिनेट बेसिकली. ठीक है. Basically a family of the grey and green. Okay. Right? You can some have the pista family something. All right. Very pastel color. ओके, ठीक है, डन. और ये टेक्सचर, वॉल The टेक्सचर. purpose of this having a wall clock, this is basically resin finish. This foyer area is again I'm saying the waiting lounge. कुछ हमें artist effect चाहिए थे, so we given this piece कि ये थोड़ा सा highlight भी करे और एक some abstract or something you can see the resin and some good vibes in there, so people can see the time as well. All right. एरिया में ये डिज़ाइन देने का मेन पर्पस था कि दिस इज डिज़ाइन इज बेसिकली इंस्पायर्ड फ्रॉम फ्रेम, फोटो फ्रेम, राइट. वी डोंट वांट टू शो कि यहाँ पे एक डोर भी है. वी कैन फील कि यहाँ पे डोर है, बट उसको कितना कम से कम अवॉइड कर सके. वी हैविंग द डोर, वी हैव द एंट्री ऑफ फॉर द दिस क्लिनिक एज वेल. All right. So for area, we will enter into this clinic, which you can see how we have decorate this for this. जी. This Small clinic. Small clinic. It was previously was servant room. और they don't want कि उनको servant room नहीं चाहिए था, तो उनको clinic चाहिए था specific. Because she is a lady, so in house they want कि भैया घर पे ही clinic हो. All right. This is furniture we have outsources from the outside. You can see the finishing, and you see this is our living and dining. Here we can see the lots of things, and we can see the TV panels which we use, and the complete wall, right? And we have used these are panels to matching with this as well. All right. We use the canvas. We have used the colors in this part basically. अच्छा. We have used apply the pastel, and the fixed colors are very basics. So some movable stuff which you can see the colors. Right. Because I love the colors and my client as well like the colors, because Achha. the color life should be colorful. Exactly. And these colors are very eye catching. Right. And So it is very less. Okay. Not too much for this. अब इसका थोड़ा सा डिटेल हम व्यूअर्स को दे दें. इट्स व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स जो आपको ड्राइंग रूम प्लस लिविंग रूम, यहाँ पे अलग से एक लिविंग रूम नहीं है. Right. तो ये लिविंग रूम का कॉन्सेप्ट भी देगा और ड्राइंग रूम का कॉन्सेप्ट भी होगा. तो उनके फर्नीचर में क्या फ़र्क होता है? लिविंग, अब हम लिविंग में हैं, तो लिविंग इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस हाउस, इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस हाउस. ठीक है. तो हम लोगों ने यू कैन सी कि हम लोगों ने एल शेप सोफा यूज़ किया है यहाँ पे. जी. बिकॉज लिविंग इज एंड डाइनिंग आर द बोथ आर सेम एंड द सेम. सो कोई डिवाइडेशन नहीं है जिसमें हम ये डिस्क्राइब कर सके कि लिविंग इज डाइनिंग इज आर. ये एक फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों सिटिंग है. हम इसको मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं. वी कैन ले डाउन, हम सो के भी, एंड वी कैन हैव द फन ऑफ द टीवी, और जो कि आपका बैल्कनी का व्यू भी ब्लॉक नहीं कर रहा है. सो दीज आर द रीज़न वो हम लोगों ने एल शेप को यहाँ पे प्रेफरेंस दी. ठीक है. एक चीज़ और है तरुण जी जो मुझे यहाँ पे अच्छा लगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कैजुअल स्पेस है. यहाँ पर आपको यू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम वॉचिंग टेलीविजन, है ना. तो जो आपका फैब्रिक है, जो आपका कंफर्ट लेवल है, वो भी कंपेयर टू ए फॉर्मल सीटिंग थोड़ा ज़्यादा होता है. Exactly. वो हमने जो होता है ज़्यादा यूज़ किया हुआ है इसको. राइट. ठीक है. दैट इज द रीजन हम लोगों ने डार्क कलर यहाँ पे हम लोग यूज़ किया था कि रफ, थोड़ा सा रफ यूज भी होगा, तो विच विल बी नॉट विजिबल कि बहुत ज़्यादा लाइट कलर, तो इट विल नॉट लुक बैड इन द. हाँ, वेरी ट्रू. वो गंदा भी नहीं होगा. राइट. अब बात करेंगे क्विकली इस ब्यूटीफुल, एक हमने लाइटर पेस्टल शेड में एक यहाँ पे टीवी यूनिट दिया है. एग्जैक्टली. जो मेरे ख्याल से पीयू फिनिश में. No, this is not PU, this is Deco. Okay, Deco man. This is Deco semi matte. Right. We जी. have used the half round this panels of the HDF. All right. Right. These are the custom made और ये मार्केट से नहीं, मैंने इसको कस्टमाइज करवाया CNC कटिंग से. अच्छा, ठीक है. उसके बाद लाइट्स के बारे में भी बात से कुछ एक दो चीज़ें पूछेंगे, पर उससे पहले these are प्रोफाइल लाइट्स जो है अपने यूनिट में यूज़ किए एज हाईलाइटर. ब्यूटीफुल सेल सस्पेंडेड है विदाउट लेग्स, बिकॉज स्पेस कंस्ट्रेंट भी है यहाँ पे थोड़ा, बिल्कुल, इसलिए आपने विदाउट लेग्स दिया है यहाँ पे. हाँ जी. ठीक है. तो नीड टू लिव. तरुण जी थोड़ा सा लाइट के बारे में हमको बता दीजिए बेसिकली कि हमने कौन कौन सी यहाँ पे लाइट्स हैं जो जिनको फॉलो किया है. यहाँ हम लोगों ने बेसिकली COB लाइट्स का यूज़ किया है. अच्छा. जो आप ये छोटे पैनल्स देख रहे हैं, ये COB लाइट्स हैं सारी, एंड दिस इज नेचुरल वाइट. कोब में जो कलर है दिस इज वार्म वाइट. ओके. जो यहाँ पे हम लोगों ने 2 कलर्स का यूज़ किया है जी. और मल्टी पर्पज़ के लिए हम लोगों ने यहाँ पे प्रोफाइल लाइट्स का भी यूज़ किया है.
ऑलराइट, वो फॉयर था, उसके बाद में आप डायरेक्टली एंट्री नहीं कर सकते घर में। तो एक यहाँ पे भी हमने मेन गेट दिया हुआ है, वहाँ पे सॉरी मेन डोर है। राइट। और यहाँ पे रादर देन यूजिंग ट्रांसपेरेंट लाइट, आई मीन ग्लास, कौन से ग्लास हमने यूज़ किए हैं? हम लोगों ने यहाँ पे एक फ्लूइड ग्लासेस यूज किए हैं। रीजन था इसके पीछे कि हम लोगों को फॉयर एरिया और ये पर्सनल स्पेस है, दोनों को अलग आइडेंटिफाई करना था। अच्छा। तो जो वेटिंग लाउंज है, तो जो उनके क्लाइंट्स हैं वो आए तो उनको ये पार्ट दिखे नहीं। अच्छा, ये तो प्राइवेट व्यू ब्लॉक करना एरिया, व्यू ब्लॉक करना था, प्लस इससे ब्यूटी भी आ गया। तो दैट इज द रीजन हम लोगों ने यहाँ पे फ्लूइड ग्लासेस का यूज किया है। ठीक है, हमने पूरा वुड डोर का नहीं यूज़ किया है यहाँ पे, वुडन डोर या फ्लश डोर या फिर ऐसा कुछ यूज़ क्यों नहीं किया? लोग विनियर्स के साथ लोग यूज़ कर लेते हैं अक्सर। ये डिपेंड करता है कि हमारी क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स कैसी है, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है। एक लाइट की भी बहुत बड़ी बजट भी है, एंड ग्लास इज लग्जरी, ग्लास इज मोर लग्जरी। दूसरा मुझे लगता है लाइट का सोर्स भी होगा, जब आपके पास ग्लास के डोर होते हैं तो एक सेमी इनविजिबल वॉल बनती है। राइट। तो इंटरनल इंटरकनेक्टिंग डोर्स को एज मच एज पॉसिबल आप वहाँ पे ग्लास यूज कर सकते हैं, वो अच्छे दिखाई देते हैं। राइट, ठीक है। टॉकिंग अबाउट दिस वॉल, अब यहाँ पे आपने बहुत डिफरेंट फीचर वॉल बनाया है विद द हेल्प ऑफ लुकिंग मिरर। या प्लीज टेल मी अबाउट दिस, ये बताएं मुझे। अगेन दिस इज अ मिरर एंड फीचर वॉल। अच्छा। हम लोगों ने ग्लासेस को नॉर्मल वे में ना यूज करते हो, हम लोगों ने वुड प्लस ग्लासेस का मिरर का यूज किया है यहाँ पे। ठीक है। राइट, उसमें हम लोगों ने अराउंड 1 इंचेस, अराउंड 0.5 इंचेस का हम लोगों ने बेबलिंग भी दिया है। अच्छा। एंड वी हैव हम लोगों ने यहाँ पे डीको भी यूज किया है। सो इट्स लाइक अ फोटो वॉल और फोटो फ्रेम समथिंग, जिसमें हमारा ग्लास का पर्पस भी सो मिरर भी आ गए और उसके साथ हमारा पॉलिश का भी काम हो गया इसके अंदर। एग्जैक्टली। हाँ, तो बैलेंस जो था हम लोगों ने यहाँ पे कंसोल रखा। अच्छा। विच वॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट्स। मेरी अगर क्लाइंट्स अगर आपको अच्छा मिल जाए इतनी अच्छी सोच का, तो इट्स अ चेरी ऑन द केक ऑन योर। एग्जैक्टली। ये हम लोगों ने यहाँ पे टाइल वर्क पूरा किया है। यहाँ पे हम लोगों ने 32-64 इंचेस की टाइल्स का यूज किया है। अच्छा। एंड सम काइंड ऑफ सम वाइट मार्बल पैटर्न का हम लोगों ने यहाँ पे टाइल्स को यूज किया है। बिकॉज जितना वाइट और फ्लोर होगा उतना ही घर बड़ा दिखता है। मेन रीजन तो सबसे बड़ा ये है। ठीक है। दिस इज आवर डाइनिंग एरिया। तो ये भी पहले से ही आइडेंटिफाई था कि हमें एक इंडिविजुअल और एक सेटल डाइनिंग एरिया चाहिए विद द क्रॉकरी यूनिट एंड विद द क्रॉकरी यूनिट एंड बुफे काउंटर एंड द बार काउंटर। अच्छा। हाँ, ठीक है। यूजिंग दिस फ्लूट पैनल, फ्लूट ग्लासेस, क्योंकि वो एक पूरी थीम ऐसी चल रही थी कि हम लोगों ने ग्लासेस को उससे एक मैच करने के लिए एक अलग डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट ना डालने की बजाय हम लोगों ने सेम फैमिली की एक ही प्रोडक्ट को यूज़ किया है। ऑलराइट, ठीक है, डन। अब बैकलाइट इज इम्पोर्टेंट, उससे आपके घर में एक लाइट्स भी ऐड हो जाती है ना। हाँ, ठीक है। और ये दो यहाँ पे ना एक डोर है आई गेस और एक विंडो है, जहाँ पे हमने वर्टिकल ब्लाइंड्स लगाए हैं वुडन में। कर्टन्स लोग जनरली लगाते थे इन जगहों पे। राइट। तो हमने यहाँ पे ब्लाइंड्स क्यों यूज़ किए? मेन रीज़न ये था कि जैसे आपने बोला कि एक डोर है, एक फिक्स विंडो है, स्लाइडिंग विंडो है। राइट। तो ऊपर हमारा एसी भी आ रहा था, तो पेलमेट बनाना इज वेरी टफ फॉर हियर, क्योंकि यहाँ पे पानी का फ्लो भी था उस तरीके से कि हम लोग को बारिश को भी देखना था। ठीक है। तो एक और दूसरा ये था कि एक लिविंग डाइनिंग अगर मैं यहाँ कर्टन्स भी यूज़ करता तो और कॉम्पैक्ट हो जाता, बिकॉज आपने पहले लिविंग में भी देखा होगा कि डार्क कर्टन्स हम लोगों ने यूज़ किए हैं। तो बहुत ज़्यादा ड्रेप्स लगाने से स्पेस आपका भर जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। एक डिफरेंट एंड एक रियल वुड का हम लोगों ने एलिमेंट यूज़ किया है। ठीक है। और डाइनिंग में 6 सीटर हमने दिया है यहाँ पे, इटालियन मार्बल 6 सीटर यूज किया है हम लोगों ने। इटालियन मार्बल विद सम वीनियर इफेक्ट एंड विद सम फ्लूट यू पैनल के नीचे हम लोगों ने स्टफ यूज किए हैं यहाँ पे, व्हिच यू कैन सी। ओके। ये बहुत हायर मतलब हाई क्वालिटी, आई एम नॉट से कि भैया हायर एंड, बट ये क्वालिटी वाइज इज वेरी वेरी मतलब हैवी डाइनिंग टेबल्स। ओके, सेंटर बेस है ये और 4 लेग्स की बजाय सेंटर बेस है। राइट, सेंटर बेस। ठीक है, डन। क्योंकि आपकी चेयर्स का साइज थोड़ा सा लार्ज है। एग्जैक्टली। ऑलराइट, ठीक है, डन। और एलिमेंट भी ऐड हो गया कि हम लोगों ने इटालियन मार्बल भी यूज कर लिया। ठीक बात है। अगर आप इसको डिफाइन करें हम, अगर तरुण जी आप लोगों की लैंग्वेज में, तो इट्स मोर लाइक अ लग्जरी अपार्टमेंट है ये, है ना, जहाँ पे हमने काफी लग्जरी को ऐड किया है। फ्यूजन ऑफ एवरीथिंग। राइट। ये हमारा किचन है, आप देख सकते हैं। बड़ा एक कॉमन सा क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लू कलर हम लोगों ने किचन में क्यों यूज़ किया। क्लाइंट ने मुझे 3-4 ऑप्शंस दिए थे पर्सनली, तो मुझे उनमें से ये कलर सबसे अच्छा लगा। अच्छा। इट इज अ मैट फिनिश। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे इसको और ब्यूटीफाई करने के लिए हम लोगों ने फ्लूट ग्लासेस यूज़ किया गई, बिकॉज एक ही घर है तो हम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ना यूज़ करने के बजाय सिमिलर काइंड ऑफ ग्लासेस को हमने यूज़ किया। अच्छा। और ब्यूटीफाई करने के लिए हम लोगों ने पिस्टल कलर के अंदर हमने सबवे टाइल विद अ हेरिंगबोन पैटर्न व्हिच वी यूज। ऑलराइट।
इनको आप दो तरह से लगा सकते हैं, शेवन पैटर्न्स ला सकते हैं या हेरिंग? हम लोग इसको हेरिंग बोन में भी लगा सकते हैं, ब्रिक पैटर्न में भी लगा सकते हैं। So, लेकिन इंटरेस्टिंग पैटर्न क्रिएट करता है अगर आप इसको फ्लैट लगाते हैं, अगर आप मान लीजिए इस तरह के टाइल्स को, तो वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। राइट। लेकिन इसमें क्या वेस्टेज के चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाते हैं? इसमें वेस्टेज भी है और बट इट इज टाइम टेकिंग एज वेल। ओके, ठीक है। इजी नहीं है लगाना इसको। ऑलराइट। जहाँ किसी एक सबवे टाइल को नॉर्मल बिग पैटर्न में 1 दिन लगता है, तो इसको ऑलमोस्ट 2 दिन पूरे दिन लगेंगे। ठीक है। मैंने थोड़ा सा एक्सटेंशन किया कि ये जो हमारा एक बैल्कनी का जो पार्ट था हम लोगों ने इसमें ऐड किया है। ठीक है। क्योंकि उनको ज़्यादा स्टोरेज चाहिए थी, एक फ्लो चाहिए था, क्योंकि वो जो छोटा सा यूटिलिटी पार्ट था वो इतना यूजेबल नहीं था। अच्छा। इसमें भी एक ट्विस्ट है, मैं आपको बताता हूँ। जो आप एक सिमेट्री देख रहे हो यहाँ से लेके वहां तक जो चल रही है जी, इसमें एक स्टेप था। अच्छा। जो कि अंदर जा रहा था। ओके, डिप्रेशन था एक वॉल में, लाइक दिस, जो ये जैसे ये स्टेप दिख रहा है। अच्छा। राइट। तो मुझे इसको फ्लोलेस बनाना था पर्सनली। अच्छा। तो मैंने इसको फ्लोलेस बनाने के लिए पहले इसको लेवल अप किया एंड देन फिर एक फ्लो आ गया। लवली। कौन सा कलर आपने यूज किया इसमें? दिस सबवे का इट्स काइंड ऑफ सम ऑफ द फैमिली ऑफ द पिंकिश और पीच जैसा। ओके, डन। जहां ब्रांड यूज करना है वहां ब्रांड किया, जहां नॉन ब्रांडेड है सर। ऑलराइट। जनरली अप्लायंसेस के बारे में एक लोगों को क्वेश्चन होता है, अप्लायंसेस लोग खुद से खरीदना चाहते हैं। Right. आपका क्या सजेशन होता है? आप अप्लायंसेस, डू यू बिलीव द डिजाइनर शुड गो विद देम और प्रॉब्ली दे शुड बाय ऑन देयर ओन? नहीं, सुपरविजन हमेशा डिजाइनर्स की ही होनी चाहिए। क्योंकि देखो डिजाइनर्स है तो उसको हर एक एलिमेंट्स को देखना, एक एक छोटा छोटा एलिमेंट मैटर्स अ लॉट फॉर द डिजाइनर। ऑलराइट। क्योंकि क्लाइंट्स की एजुकेशन और डिजाइनर की एजुकेशन में बहुत फर्क है। ठीक है। अगर या तो फिर क्लाइंट्स उतना एजुकेट हो, राइट, और ये तो इट्स अ ब्लेंड ऑफ, इट्स अ डिसीजन ऑफ म्यूचुअल। ओके। हम लोगों संजीव जी आइए दिखाता हूँ मैं आपको टेंपल कि इस घर में हम लोगों ने टेंपल को कैसे ऑर्गेनाइज किया है। ओके। ये एक एक्चुअली डेडिकेटेड स्पेस था, बिल्डर ने ही दिया था जी, बट इसको कैसे यूटिलाइज करना था वो देखना एक वो सबसे बड़ा चैलेंज था, कैसे इसको ब्यूटीफाई करना था हम लोगों राइट। तो हम लोगों ने इसको ब्यूटीफाई करने के लिए जो है हम लोगों ने डीको का काम किया है इसमें। समवेयर हमने इसमें स्टोरेज का भी ध्यान रखा है और उनकी खुद की जो ट्रेडिशंस हैं क्लाइंट्स की, किस लेवल पे उसका हाइट होना चाहिए जो उनके हिसाब से वो हम लोगों ने देखते हुए उस चीज़ को हम लोगों ने इसको डिज़ाइन किया। ठीक है। टेंपल को ना आपने बहुत मिनिमलिस्टिक रखा है, मतलब बहुत वेरी सिंपल एंड एलिगेंट एंड क्लासी। अदरवाइज लोगों की टेंडेंसी होती है दे हैंग लॉट ऑफ शैंडलियर्स और बहुत सारे वॉलपेपर लगा देते हैं उसमें, लेकिन आपने टेक्सचर यूज़ किया उसकी जगह। राइट। बहुत बेसिक चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे यूटिलाइज की ताकि ये जितना और मतलब अच्छा एक गुड वाइब्स आ सकें इसके। ठीक है, डन। और क्लोज करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे ग्लासेस किए हैं, टफन ग्लासेस। ठीक है। और सी थ्रू ना रहे ज़्यादा तो हम लोगों ने कुछ एक डिज़ाइन ऐसा डाला है कि इवनिंग में मंदिर जैसे क्लोज होते हैं तो वो भी फील आए। अच्छा, ठीक है। और ऑल द टाइम ये सी थ्रू भी नहीं रहेगा। आई थिंक इसका एक और बेनिफिट भी होता है कि जब आपके पास लार्जर गैदरिंग होती है, देयर आर ओकेजन्स, ऐसे मौके होते हैं ना जहाँ पे जैसे दिवाली है या जब सारी पूरी फैमिली बैठ के एक साथ पूजा करती है, तो स्लाइडर होने से आई थिंक यू गेट ईजियर एक्सेस। ज़्यादा लोग एक साथ बैठ के पूजा कर सकते हैं उसको। राइट। बट ठीक है, अदरवाइज कोई प्रोविजन अरेंजमेंट हम कर सकते हैं ऐसा पाइप्स देके या कुछ ऐसा डक्ट बना के या हिडन डोर या ट्रैप डोर बना के जहाँ से वेंटिलेशन हम अरेंज कर सके? बिल्कुल कर सकते हैं अगर वो पॉसिबिलिटी है, अगर उसमें टेक्निकल चैलेंजेस नहीं है। ओके। अगर मेरे पास भी पीछे अगर ऐसा ऑप्शन होता तो मैं डेफिनेटली ट्राई करता पीछे, क्योंकि ये एक आरसीसी वॉल भी है। अच्छा। और इसके पीछे फिर अलमीरा भी थी। राइट। और यहाँ से मेरा पीछे टीवी यूनिट है लिविंग का। हाँ, देयर आर सर्टेन थिंग्स यू कांट चेंज टू फिनिश। ठीक है। संजीव जी आइए, अब मैं आपको पर्सनल स्पेस की तरफ लेके चलता हूँ। और पर्सनल स्पेस से आने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक फ़ोटो वॉल जिसमें हम लोगों ने क्लाइंट्स की मेमोरीज़ को मतलब इसमें फीड किया है कि कैसे कैसे इनकी मेमोरीज़ को हम लोगों को दे कैन सी, और एक फीचर वॉल की तरह हम लोगों ने इस वॉल को ट्रीट किया। ओह ओके। आई थिंक पूरा जर्नी है। राइट। ऑलमोस्ट पूरा जर्नी है। इसको सिलेक्शन करने में भी इनको बहुत समय लग गया। अच्छा, ओके। तो ये सारे के सारे इमेजेस आपने कलेक्ट करके कोलाज बनाया है, सबको कलेक्ट करके प्रिंट आउट लेके? बिल्कुल, प्रेशर बनाया है, पूरा प्रेशर क्लाइंट्स के ऊपर। अच्छा, कि ये चाहिए मतलब चाहिए। ओके। जनरली लोग इन गैलरीज को लेके कंफ्यूज होते हैं कि इनको कैसे आप उनको डेकोरेट करें, बट आई थिंक दिस हैज कम आउट वेरी वेल। एक अच्छा ऑप्शन होता है ये। मेरा सजेशन रहेगा कि अगर किसी के घर में भी या किसी की भी अपकमिंग कोई भी प्रोजेक्ट करना, मतलब इंटीरियर करवाना चाहता है, उनके घर में अगर ऐसी लॉन्ग गैलरी है तो एक दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट वे
जो जिससे फोटो फ्रेम से हम यूटिलाइज कर सकते हैं और यू कैन सी द सीलिंग डिजाइन एज वेल ओके जो और उसको ब्यूटीफाई कर रहा है अच्छे से। राइट। इन इमेजेस को हाईलाइट करने के लिए बिकॉज यहाँ पे लाइट आपको ज़्यादा चाहिए होती है तो आपको ट्रैक लाइट्स या फिर फोकस लाइट की ज़रूरत पड़ सकती है? बिल्कुल पड़ सकती है। अच्छा। बट मैंने उसका सब्स्टिट्यूट यू कैन सी दिस लाइट्स जिसमें 5 लाइट्स के ऑप्शंस हैं और उसके अलावा भी अगर इन फ्रेम को बनाने के लिए भी इन पैनल बहुत मैटर करता है कि आप क्या प्रोफाइल के पैनल्स यूज कर रहे हो इन सब चीज़ों में। ऑलराइट, बहुत मैटर है इन सब चीज़ों। ये हमारा मास्टर बेडरूम है। आप यहाँ देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पे एक बेड डिज़ाइन किया है जो कि इन हाउस यहीं पे ही बना है राइट। उसके बाद हम लोगों ने ग्लासेस, ड्रेसर एंड देन कर्टन्स एंड ब्लाइंड कर्टन्स का यूज़ किया है। उसके अलावा हम लोग बड़ा मिनिमलिस्टिक सा टीवी यूनिट्स हम लोगों ने ऐड किया है यहाँ पे। अच्छा हाँ। ठीक है। और टीवी यूनिट्स को एनहांस करने के लिए आप देख सकते हैं हम लोगों ने बॉल्स, द क्रिस्टल एंड द मिरर फिनिश बॉल्स को हम लोगों ने यूज़ किया है। बड़ा ही मिनिमल हम लोगों ने टीवी यूनिट्स को की सिलेक्शन की है। उसके अलावा हम लोगों ने एक वार्डरोब कम पर्सनल स्पेस सम बार को भी हम लोगों ने यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश की है। अच्छा, जिसमें आप देख सकते हैं दिस इज द पर्सनल रिक्वायरमेंट। राइट। वो हर इंडिविजुअल की अपनी टेस्ट होती है, अपने हर इंडिविजुअल का अपना एक नजरिया होता है। एग्जैक्टली। बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आई मीन एक्सपेक्ट वार्डरोब, उनको लोगों को लगता है कि यहाँ पे शायद एक वार्डरोब होगा। एग्जैक्टली राइट। चलिए ठीक है। बट मेरा पर्पस यहाँ पे वार्डरोब देना नहीं था बेसिकली कि हाँ एक जगह स्पेस को हम लोग को यूटिलाइज करना था और यूटिलाइज करने के रीजन हमारे ये थे। उसके साथ हमें मल्टीपल रीजन ऐड करके हम लोगों ने इस तरीके से इसको ठीक है यूज किया। ऑलराइट। अब मेरे पास 2-3 सवाल हैं। एक तो आई हैव नॉट सीन समथिंग लाइक दिस, ये क्या है वॉल के ऊपर? ये दिस इज बेसिकली स्टील बॉल्स, मिरर फिनिश बॉल। अच्छा। क्योंकि वॉल बहुत बड़ी थी, हमारे पास काफी स्पेस था तो उसकी वजह से हम लोगों ने जितना ड्रेसर को स्पेस देना था उतना हमने वो ड्रेसर को दिया। उसके बाद टीवी यूनिट हमें बड़ी मिनिमलिस्टिक रखनी थी, कुछ हैवी वुडन वर्क नहीं करना था, तो हम लोगों ने इस तरह के डिजाइन्स का सिलेक्शन किया। ओके। जो इट इज वेरी यूनिक, आप देख सकते हो। हाँ, ये कस्टमाइज है, कस्टम मेड है, ये मार्केट में मिलते हैं। ये आते हैं। अच्छा। ऑनलाइन आप काफी वेबसाइट्स हैं जिस पे हमें अवेलेबल हो सकता है। यू जस्ट स्क्रू देम, दीवार पे आप स्क्रू कर सकते हैं, स्क्रू करके अपने तरीके से इसको रैंडमली अलाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया। स्पेशली किड्स के रूम में भी आप इनको ट्राई कर सकते हैं। सीलिंग के ऊपर भी लगा सकते हैं इनको? नहीं, अभी तक तो हम लोगों ने इस पे वॉल पे ही ट्राई किया है। अच्छा। जो रेफरेंस हैं वो भी वॉल पे ही है। ओके, डन। बिकॉज़ वेरी हैवी। अच्छा, वेरी हैवी। ऑलराइट, सो सेफ्टी इशू होगा। सेफ्टी इश्यूज हो सकते हैं। राइट। यहाँ पे हमने एक ड्रेसर दिया है जो कंसील्ड ड्रेसर है, वेरी स्पेस सेविंग कॉन्सेप्ट में। राइट, है ना? ओके, डन। उसको भी ध्यान में रखते हुए कि लाइट्स का भी इफेक्ट ओपनेबल है। ओपनेबल है। ऑलराइट। अच्छा, जनरली जो जिनके अंदर लाइट्स होती है जिन मिरर में, उनको लोग फिक्स लगाते हैं। राइट। व्हाट यू हैव डन, आपने थोड़ा एक्सपेरिमेंटल हैवी बनाया है। राइट। इसको तो ये इसकी लाइफ तो खराब नहीं होगी ना इससे? ऐसा खराब नहीं होगी क्योंकि इसमें जो मेन दिक्कत आ सकती है वो अडेप्टर की है। अच्छा। व्हिच इज अ माइंड ऑफ मतलब AC/DC जो भी है। अच्छा। वो तो उसमें वो खराब हुआ तो वो अडेप्टर रिपेयरेबल है। ओके, रिप्लेसेबल बेसिकली। ठीक है। कलर्स यहाँ पे थोड़े डिफरेंट है बेडरूम में। हाँ, क्योंकि बाकी सारी जो कलर्स थे वो सारे पिस्टल कलर हैं। पिस्टल कलर हैं तो हम लोगों को कुछ तो पॉपअप चाहिए। राइट। तो पॉपअप के लिए हम लोगों ने एक फिक्स सिटिंग का सिलेक्शन किया जिसमें हम अपनी लेग्स को भी रेस्ट के अंदर ले सकते हैं। राइट। आपने एकदम बहुत बोल्ड कलर ऑरेंज यहाँ पे यूज किया है। राइट। चलिए ठीक है, विल गो नाउ। लाइट्स को देखें, यहाँ पे साइड टेबल्स नहीं दिए हमने बैठ के, वो क्यों ऐसा? वो इट इज कमिंग। अच्छा, देयर आर 2 साइड टेबल्स आर कमिंग, बट यू डोंट नीड लाइट लैंप साइड टेबल के ऊपर क्योंकि ऑलरेडी लैंप्स हमने दे रखे हैं। राइट, द फिक्स लैंप्स। ओके। पीछे हमने फ्लूट्स के पीछे हमने बहुत सारे लूवर्स दिए हैं। राइट, है ना? इनको आपने पेंट किया है कस्टमाइज? या इट्स अ डीको बेसिकली। ऑलराइट। क्या वजह थी कि जितने भी हमारे जो POP वर्क है, जो हमारा फॉल सीलिंग है, वो कर्वेशियस है, उसमें शार्प एजेस नहीं है, कॉर्नर्स नहीं है उसमें? Because it's a trend, my liking as well. अच्छा। अच्छा भी लगता है। आई हैव सीन इट, या करेक्ट है, मैंने भी देखा भी। मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइकिंग दिस। एक थोड़ा स्पेशली बेडरूम में आपको एक थोड़ा सॉफ्टनेस आती है इससे। Exactly. राइट। क्योंकि कॉर्नर्स तो अभी चल रहा है, वो तो है ही। जी। जितना मिनिमल और सिंपल रहेगा डिजाइन इट्स गुड। अच्छा ठीक है, डन। अब हम ये कौन से एरिया में जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं वॉशरूम की तरफ। अच्छा। एंड विद द वॉकिंग वार्डरोब एज वेल। ऑलराइट, लेट्स गो। राइट। यहाँ पे पहले ये दरवाजा नहीं था बेसिकली। अच्छा। ओपन था। ओके। तो ये एक पर्सनल इम्प्रोवाइजेशन स्टेज थी, तो हम लोगों ने ये दरवाजा भी ऐड किया और इसमें अच्छा प्राइवेट कर दी। ठीक है। और सेम हम लोग वही फॉलो करते चले आ रहे हैं, फ्लूट ग्लास में है। राइट। ठीक है, डन। ये यहाँ पे क्या था वैसे ओरिजिनली?
यहाँ वार्डरोब भी थी, एग्जिस्टिंग जो वार्डरोब थी उसी को ही हम लोगों ने यूज किया, बस उसके हम लोगों ने शटर्स को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया। ओके। प्रेशन ऑफ सम दिस मार्बल दिस रॉक, अच्छा, लाइक रॉ मार्बल जैसा रॉक होता है ना पत्थर की तरह, हाँ। वैसा है ये। ओके, फ्लोर इटालियन इम्प्रेशन ऑफ टाइल्स। ओके, एंड ग्लास एंड व्हाट इज कौन सा आप बाथरूम एक्सेसरीज यूज करते हैं? मैं तो बेसिकली मिक्स ऑफ दिस जैगवार, इरोज, यूजिंग दिस टैब योर जैगवार, और जो WC एंड द वॉश बेसिन इज इरोज बेसिकली। ऑलराइट, आई लाइक द डिजाइनिंग ऑफ दिस ब्रांड्स बेसिकली ओके, इन टर्म ऑफ दिस WC एंड वॉश बेसिन। ठीक है, लेकिन यूटिलिटी भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इनकी, क्योंकि लोग बहुत परेशान होते हैं प्लम्बिंग के काम को लेकर। राइट। एंड वैनिटी दिया हमने यहाँ पे एक छोटा सा स्मार्ट सा, वैनिटी दिया है, सेम हम लोगों ने वही पैनल्स को यूज किया है यहाँ पे विद द पॉलिश। एक ओपन स्पेस दिया है ताकि यहाँ पे हम अपने कोई भी ओपन, हाँ, जो आपको क्विक चीजें चाहिए होती हैं, मसलन आपको जैसे हैंड टॉवल्स वगैरह चाहिए होते हैं, कुछ बोतल चाहिए, राइट, ठीक है। करने के लिए हम लोगों ने सीलिंग में ऐसा डिजाइन डाला। अच्छा, इसमें डिफरेंट टाइप की लाइट्स के इफेक्ट्स, जैसे मूड हो इंसान का वैसे भी अपने हिसाब से हम लोग अपने लाइट्स के इफेक्ट्स को जनरली लोग इस तरह से सीलिंग को स्लिट नहीं करते हैं टू पार्ट्स, लेकिन आपने थोड़ा डिफरेंट प्ले किया है। मैं इसका इम्पैक्ट भी दिखाएंगे, इम्पैक्ट दिखाता हूँ इसका। ओह, ये घर का आई थिंक सबसे डिफिकल्ट और इम्पोर्टेंट दोनों पार्ट होते हैं जब आप किड्स के रूम को डिजाइन करते हैं, राइट। बताइए, तो यहाँ पे प्रायोरिटी क्या थी हमारे पास? एस्थेटिक्स तो ऑफ कोर्स होते ही हैं। बेसिकली क्या है, यहाँ पे हमारे साथ प्रायोरिटी जो सबसे अच्छी थी कि स्टोरेज नहीं थी। यूजुअली क्या था, स्टोरेज की बड़ी डिमांड होती है किड्स रूम के अंदर। अच्छा, तो आपके फेवर में आया वो? हाँ, ये वो मेरे फेवर में है कि बिकॉज एक बिल्डर ने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वार्डरोब का स्पेस दिया हुआ था। अच्छा, तो वो एक सबसे बड़ा अच्छा, तो उसकी वजह उसी रीज़न की वजह से मैंने इस रूम को डिज़ाइन करने में बहुत अच्छी, मतलब हम लोग काफ़ी अच्छे तक रिजल्ट तक पहुंचे हैं यहाँ पे। ओके, हम लोगों ने एक बड़े साइज का एक स्टडी टेबल भी दिया बना के यहाँ पे बच्चे के हिसाब से। कलर्स ऐसे भी ऐड किए, ज़्यादा फ्लैशी भी नहीं हो, ज़्यादा पॉपअप भी ना करें, और उसके साथ वुडन का भी मिक्सअप हम नहीं किया। उसके बाद हम लोगों ने किड्स के हिसाब से डार्क कलर के हम लोगों ने दिस कर्टन्स यूज़ किए, right, sweats, hardcore sweats finish, and some family of orange color of this panels bed, and आप देख सकते हैं solid color का your bed sheet with the light effects of the textures, और थोड़ा सा positive message भी दिया है हम लोगों ने, do not quit, okay, right, and ये सब custom made होगा आपका, right, everything is custom made। उसके बाद हम लोगों ने एक monkey bar बनाया है यहाँ पे खेलने कूदने के अच्छे के हिसाब से, right, प्लस वहाँ पे हम लोगों ने स्टोरेज भी दिया, ओपन एंड हिडन बोथ। ओके, लोगों को किड्स रूम में एक और एप्रीहेंशन होता है, वो है सेफ्टी का इश्यूज रिलेटेड टू शार्प एजेस या डिस्ट्रैक्टिव माइंड, क्योंकि किड्स रूम में बच्चे को स्टडी करनी होती है, right, तो कोई भी चीज़ आप ऐसे नहीं लगाते उसमें कि आपको लगता हो कि जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, right, आपने बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं क्रिएट किए हैं, तो वाइज लोगों के किड्स के जो माइंड है वो अट्रैक्ट होते हैं exactly, उन चीज़ों की तरफ जहाँ नहीं होने चाहिए, राइट। आपका फोकस जो है किड्स को, बिकॉज यू हैव टू मेक देम वर्क ऑन देयर ब्रेन, राइट, तो उनका फोकस जो है उनकी स्टडी पे रहना चाहिए, राइट। लोग बहुत सारे लाउड कलर नहीं है, हाँ, अच्छी बात है, और बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा टॉयज या बहुत ज़्यादा कलर्स या बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स ऐड करते हैं, राइट, एंड आई एम श्योर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चों पे ज़्यादा होता होगा। तो एज ए डिज़ाइनर वो सब चीज़ें भी मेरे ख्याल से ध्यान में रखना चाहिए, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए। ओके, डन। ये जो यूनिट आपने बनाया ये यहीं पे बनाया? बिल्कुल, इधर ही बना, हमने कंस्ट्रक्ट किया, ओके, डन। प्रोफाइल लाइट्स हैं यहाँ पे, और रीडिंग के लिए स्ट्रॉन्ग लाइट चाहिए बच्चे को, बिल्कुल, उसका भी हम खास ख्याल रखते हैं, और पावर प्लग्स, ताकि वो आराम से उसको लैपटॉप वगैरह जो भी उसकी स्टडीज के लिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए, ऑलराइट, तो वी हैव कंसीडर एवरीथिंग। ओके, चलिए ठीक है, ऑलराइट, वी डोंट वांट टू क्विट। हाँ, सबसे अच्छी चीज आप देखोगे ऊपर फॉल सीलिंग का जो डिजाइन है, ये क्या कस्टमाइज्ड वॉलपेपर है? नहीं, इज नॉट कस्टमाइज्ड, रिटेल, अच्छा, इजीली अवेलेबल है, ओके। सो क्योंकि मुझे इसमें लाइंस नहीं दिख रही हैं कहीं भी, हैं लाइंस हैं, अच्छा, सीमलेसली लगाया है वो, ओके, ऑलराइट, डन। ये वो नियॉन लाइट्स तो नहीं है जो लाइट में? नहीं, नॉर्मल लाइट्स हैं, बट वो वॉलपेपर का इफेक्ट ऐसा है, उसकी वजह से फील ऐसा होता है। ऑलराइट, ठीक है, ये सेम टेक्सचर हमने यहाँ पे फॉलो किया हुआ है, राइट। नहीं, टेक्सचर हम लोगों ने सिर्फ ओनली दिस पार्ट दिया जहाँ पे सिर्फ बेड की पूरी पैनलिंग हुई है, अदरवाइज हम लोगों ने इसको सॉलिड प्लेन नहीं रखा। हाँ, क्योंकि ये टेक्सचर से अच्छा बहुत स्मूथ है ये टेक्सचर, हाँ जी, दिखने में रफ है, टच में स्मूथ है। राइट। यहाँ पे हमने कौन सी टाइल्स लगाए हैं बैल्कनी में तरुण जी?
हमने नॉर्मल ब्लैक में जिगजैग कलर का जेब्रा पैटर्न के अंदर हम लोगों ने टाइल का यूज़ किया है यहाँ पे, और उसके साथ हम लोगों ने 2 आउटडोर फर्नीचर, 2 आउटडोर चेयर्स दी हैं। अच्छा, जो यू कैन सी द लुक, जो कि पूरी बैल्कनी के साथ जाती है। ऑलराइट, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ मुझे लग रहा है काम पेंडिंग है। यहाँ काम पेंडिंग है, ब्यूटीफुल प्लांट्स का कुछ काम होना बाकी है। राइट, लाइट्स भी आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं कुछ, है ना? लाइट्स हम लोगों ने फ्लोर के अंदर भी दिया है इसके अंदर, एज यू कैन सी। अच्छा, फ्लोर के अंदर? राइट, वो कैसे? ओके, ये फ्लोर के अंदर दिया हुआ है? हाँ जी, ये फ्लोर। व्हाट इज द पर्पस? बस जस्ट फॉर द ब्यूटिफिकेशन। ओके, ऑलराइट, चलिए ठीक है। दिस नाउ, this project, how many days it took you to finish this? We took almost 6 to 7 months here. All right. Right. And Okay. we did lots of patiently work here. We did lots of improvisation here. Okay. So that done. is the reason we have took around. You we have took taken around 6 to 7. 6 months. Okay. Are you working? Are you open to work pan India, outside Delhi NCR as well? Not yet. No. All right. It's only very Delhi. nearby to Delhi NCR. I'm okay with it. All right. Because me myself cannot be work. I need a very good You team need a big to team. execute the work. Yeah. Taking a business is very easy, but doing execution is very hard. That's the most difficult It's part. very challenging Exactly. job to execute. Very true. Very true. Because For it's that we creative have a business. need a lots of manpower, and the manpower should be a very filtration, the good manpower बिल्कुल, who can ठीक take बात the responsibility of everything. दिल्ली एनसीआर में भी कुछ आपने ऐसा बजट सोचा है कि इतने बजट के हम प्रोजेक्ट करते हैं, या इतने लेवल से नीचे के हम प्रोजेक्ट नहीं करते? It's very the question is very tricky, right? But for No, me, but there are certain budgets जो लगता है जिसमें, क्योंकि see it's about, all right, it's about like how a film director is directing a movie, and he's already directing films larger than life films. He's already working for a bigger production houses, and he may not have time for the small production houses or a small Exactly. scale budgets, Right. because see, people those who make large size budget, there's nothing wrong in making small or big, right. because your priorities change over the period of time. Right. So you can take it that way. Again, the answer of this question is basically for me, detailing matter a lot for me. Okay. I just want the end result, and this is the end result comes for the detailings. If I am having a lots of detailing, I love the detailings of the house, and But definitely there अगर is no detailing ज़्यादा fixation as है such. तो इसका indirect answer यही है कि वो बजट अपने आप ही शूट करेगा उसको। All right. I mean, it's beyond the imagination, but yes, just one term, it's beautiful. It's come out really beautiful. Okay. Making a home is a task, Yes. right? You go through a lot of struggle, mental, Physical fight, and physical exhaustion. Then you need to get into right kind of designs, finding a right kind of a person, right? Correct. That is Okay. a struggle. Finding a right kind of a person whose frequency matches you, that is a struggle. Yeah. Innovation by profession. You Right. have a company called Nutri. New to Ritu. All right. Okay. So coming back to design idea, how was your experience working with Tarun J? So working with Tarun was wonderful, I Okay. must say, and though there are always some kind of things coming up where your ideas are not matching, but working with Tarun was really comfortable. Where Tarun, he really understands your viewpoint, and he plans up things accordingly. And whenever you go on for a tour, you'll see a lot of spaces that have come up, small spaces that have turned up really beautiful. So he is gem of a person, understands and works accordingly. Hello, Rajesh ji. Hi, How are you doing, sir? doing very good. How does it feel to be part of such a beautiful house? More than being beautiful, I would say the very important thing for me was to have a comfortable home. Okay. And I've been pushing Tarun, I need this much of amount of comfort in this particular area where I want to sit, where I want to, watch my favorite movies or something. So I'm enjoying that a lot, and beautiful it's in the eye of the beholder. So All it's, right. it's beautiful to you, it's beautiful to me. You always longed for a house that is extremely futuristic, very modern, tech supported. There's the reason most of them, and we have taken a tour with Tarunji, and he was showing us around, and we have checked almost everything has got an electronic name to it, right? You are the baptizer, you're the person who baptized it. I say I try to keep a balance between a few of the elements.
I do want to have all the technical parts where I'm comfortable with. All right. And some of the places I want to keep the old school OGs. Okay. All right.